عظیم تر بلدی حیدرآباد کی میئر گدوال وجے لکشمی نے شیرلنگم پلی زون میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ گدوال وجے لکشمی میئر عظیم تر بلدی حیدرآباد نے پیر کو شیرلنگم پلی زون میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ کیا اور عہدیداروں کو جنکشن کی ترقی کو جنگی بنیادوں پر مکمل کرنے کا بھی حکم دیا۔ دریں انہوں نے جنکشن ڈیولپمنٹ میں 11 جائیدادوں سے محروم ہونے والوں سے بات کی اور زونل کمشنر کو شام تک رپورٹ پیش کرنے کو کہا۔ میئر نے کہا ہے کہ ضرورت پڑنے پر اسٹینڈنگ کمیٹی میں بحث کے بعد کارروائی کی جائے گی۔ اسی تناظر میں انہوں نے زونل کمشنر سے کہا کہ وہ برہما شنکر نگر میں اوپن جم اور ملٹی پرپز فنکشن ہال کے تعمیراتی کام کا بھی معائنہ کریں اور مقررہ وقت کے اندر کام مکمل کر کے اسے لوگوں کے لیے دستیاب کرائیں۔ میئر نے 3 آنگن واڑی مراکز کا معائنہ کیا۔ بچوں کو فراہم کی جانے والی غذائیت کے بارے میں بھی تفصیلات حاصل کی۔ کچی بستیوں کے مکینوں نے میئر سے ایک اور آنگن واڑی مرکز قائم کرنے کی درخواست کی اور انہوں نے زونل کمشنر کو اس سلسلے میں مناسب اقدامات کرنے کی ہدایت جاری کی۔ دریں جی ایچ ایم سی کی میئر نے یوسف گڑا ٹرانسفر اسٹیشن کا بھی معائنہ کیا۔ آٹو ڈرائیور سے بات چیت کرتے ہوئے ان کے مسائل دریافت کیے۔ زونل کمشنر اور اے سی سینیٹیشن رام کی انتظامیہ کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ٹرانسفر اسٹیشن کی صلاحیت میں اضافہ کریں۔ اس موقع پر میئر نے رحمت نگر، برہما شنکر نگر، یوسف گڑا کا بھی دورہ کرتے ہوئے مختلف کاموں کا معائنہ کیا۔ کارپوریٹر سی این ریڈی، زونل کمشنر ہیمنت سہدیو راؤ، سی ای او سہدیو رتناکر، اے سی سینیٹیشن رگھو پرساد کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے یاقوت پورہ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے سول سپلائز کے جوائنٹ کمشنر منوہر کمار راتھوڑ اور ڈپٹی کمشنر چندر پرکاش سے ملاقات کی۔ راشن کارڈ کی درخواست میں تاخیر اور تصدیق کے لیے استعمال ہونے والے سافٹ ویئر کے مسائل کے حل کے لیے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے یاقوت پورہ ایم ایل اے جعفر حسین معراج نے محکمہ سول سپلائز کے جوائنٹ کمشنر منوہر کمار راٹھوڑ اور ڈپٹی کمشنر چندر پرکاش سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ایم ایل اے نے راشن کارڈ کی درخواستوں میں ہونے والی تاخیر اور تصدیق کے لیے استعمال ہونے والے سافٹ ویئر کے مسائل کو اجاگر کیا، چونکہ سافٹ ویئر کے مسائل کی وجہ سے غلط معلومات ظاہر ہو رہی ہیں۔ دریں انہوں نے طبی فوائد کے لیے راشن کارڈ کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ تیز رفتار اور مناسب جانچ کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے انکوائری آفیسرز کی تعداد کو بڑھانے کے لیے بھی نمائندگی کی۔ جوائنٹ کمشنر نے یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ اس عمل کو تیز کرنے اور درست جانچ کو یقینی بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس موقع پر ایم ایل اے کے ہمراہ یاقوت پورہ حلقے کے کارپوریٹرز کے علاوہ مشتاق سر و دیگر بھی موجود تھے۔ آج نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے خاص انسٹرکشن کے اوپر میں اور یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی کے تمام کارپوریٹرز اور جناب مشتاق صاحب جوائنٹ کمشنر سول سپلائز کے آفس پہ آئے ہیں یرم منزل پہ، اور ڈپٹی کمشنر بھی موجود تھے ایم کے راٹھور جو جوائنٹ کمشنر سول سپلائز ہے، ان سے ملاقات ہوئی۔ ہمارا آج کا آنے کا مین مقصد یہی ہے کہ جو راشن کارڈ کے لیے اپلیکیشنز کافی لوگ ڈالے ہوئے ہیں، اس اپلیکیشن کو ڈیلے ہو رہا ہے انکوائری کے لیے، اور انکوائری جب کر رہے ہیں تو 360 ڈگری سافٹ ویئر کے نام سے کسی کے نے گاڑی نہیں بھی ہے تو کار ہے بول کے اس میں بتایا جا رہا۔ تو ہم خاص آ کے یہی بتائے ہیں کہ ایک تو انکوائری فاسٹ ہونا، پراپر انکوائری ہونا، چونکہ یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی کافی غریب ایریا، غریب لوکیلٹی ہے، ان کو راشن کارڈ اسی لیے ضروری ہے۔ راشن سے ہٹ کے بھی جو آج میڈیکل فیسلٹیز کے لیے ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے راشن کارڈ کا ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ تو ہم حکومت تلنگانہ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو راشن کارڈ کی انکوائری کر رہے ہیں اس میں آفیسرز بالکل کم ہیں۔ انکوائری آفیسرز کو بڑھانا چاہیے۔ جو ہے سو انکوائری آفیسرز کو بھی ادر ڈیوٹیز پہ لیا جا رہا ہے تو وہ غلط ہے۔ ایک تو یہاں پہ لوگوں کو انکوائری کے لیے اسٹرینتھ کم ہے، پھر ادر ڈیوٹیز پہ لیں گے تو مشکل ہوئیں گے۔ تو ہم آ کے یہی کہے ہیں کہ ان کو ادر ڈیوٹیز پہ نہیں لینا ہے، اور اس کے علاوہ آفیسرز کو
पुराने शहर के इलाके बहादुरपुरा में फ्लाईओवर के नीचे एक नामालूम शख्स की नाश बरामद हुई। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के पुराने शहर के बहादुरपुरा इलाके में पीर को फ्लाईओवर के नीचे एक कत्ल की वारदात पेश आई और नामालूम शख्स की नाश बरामद हुई। मुकामी अफराद की इत्तला पर बहादुरपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बहादुरपुरा पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया है और कत्ल से मुताल्लिक़ तहकीक़ात में मसरूफ़ हो गई है। पुलिस की जानिब से करीबी इलाकों के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की गई है। गोशामहल के एमएलए टी राजा सिंह भारतीय जनता पार्टी की इब्तिदाई रुकनियत से मुस्तफ़ी हो गए। साबिक़ एमएलसी रामचंद्र राव की तेलंगाना बीजेपी सदर के तौर पर तकर्रुरी पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए गोशामहल के एमएलए टी राजा सिंह ने पीर को बीजेपी की इब्तिदाई रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। तेलंगाना बीजेपी के सरबराह जी किशन रेड्डी को लिखे गए 2 सफ़ात पर मुश्तमिल इस्तीफा नामे में राजा सिंह ने मरकजी क़यादत के फैसले को सदमा और मायूसी करार देते हुए ये दावा किया कि इस फैसले से रियासत भर में पार्टी के लाखों वफादार कारकुनान को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने लिखा कि तकर्रुरी ज़मीनी सतह के कारकुनों और रहनुमाओं को दूर करने की एक बड़ी मिसाल की अक्कासी करती है, जो पार्टी के उरूज और ज़वाल दोनों के दौरान मुसलसल पार्टी के साथ खड़े रहे। राजा सिंह ने कहा कि ये ज़ाती अज़ाइम के बारे में नहीं है। उनका ये मकतूब बीजेपी के लाखों वफादार कारकुनान और हामियों के दर्द समेत मायूसी की अक्कासी करता है, जो महसूस करते हैं कि किनारा कशी की गई है और उनकी आवाज़ को नहीं सुना गया है। गोशामहल से 3 बार मुंतखब होने वाले कानून साज राजा सिंह ने बीजेपी की मरकजी क़यादत बशमूल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा, सीनियर लीडर अमित शाह और BL संतोष से अपने फैसले पर नज़रसानी करने और तेलंगाना में सही क़यादत को यकीनी बनाने की अपील की है। राजा सिंह ने पार्टी से बाज़ाब्ता ताल्लुकात मुनक़ता करते हुए हिंदुत्व के नज़रिए से अपनी वाबस्तगी का इयादा किया और गोशामहल के लोगों और वसी तर हिंदू बरादरी की खिदमत जारी रखने का भी अहद किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जानवरों की बीमारियों की दवाओं और देखभाल के शोबे में इनकलाबी तब्दीलियां लाने की खातिर नई तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने रियासत उत्तर प्रदेश के बरेली में इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के 11वें तक़सीम असनाद प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अपने खिताब में सदर ने कहा कि दीगर शोबों की तरह टेक्नोलॉजी भी मवेशियों की देखभाल में इनकलाबी तब्दीली ला सकती है। उनका कहना था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पूरे मुल्क के मवेशियों के अस्पतालों को बाइख्तियार बना सकता है। सदर जमहूरिया ने कहा कि जीनोम एडिटिंग, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजीज, मसनवी ज़हानत और बड़े आदाद शुमार के तज्जियों से इस शोबे में इनकलाबी तब्दीलियां मुमकिन है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया में एक सेहत का नज़रिया अहमियत हासिल कर रहा है। ये नज़रिया बताता है कि इंसान, घरेलू और जंगली जानवर, पेड़ पौधे और वसी माहौल एक दूसरे पर मुनहसर हैं। शहर हैदराबाद में एक और शख्स साइबर धोखाधड़ी का शिकार। शैडो फॉक्स स्कैम में एक शख्स को 5,47,000 रुपये का नुकसान हुआ। साइबर मुजरिम कभी सरमायाकारी के नाम पर तो कभी फ्रेंचाइजी के नाम पर आवाम को धोखा दे रहे हैं। ताज़ा तरीन वाक़े में हैदराबाद के बहादुरपुरे के एक 35 साला शख्स को शैडो फॉक्स स्कैम में 5 लाख रुपये से ज़ायद का नुकसान हुआ है। मुतासिरा शैडो फॉक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से चलाए जा रहे एक फर्जी फ्रेंचाइजी स्कैम का शिकार हो गया। कंपनी का मैनेजर होने का दावा करते हुए एक शख्स ने मुतासिरा शख्स से रब्ता किया, रजिस्ट्रेशन माहिदों और मिशनरी की तफसीलात फराहम की, रहनुमाई भी की। रजिस्ट्रेशन माहिदा, NOC और मिशनरी के अखराजात वगैरह के लिए फर्जी मैनेजर ने 5 लाख रुपये से ज़ायद रकम भी वसूल कर ली। बादज़ा इंश्योरेंस के लिए मज़ीद 1,14,000 रुपये अदा करने का मुतालबा किया गया, जिसके बाद मुतासिरा शख्स को शुबा हुआ और जब उसने रकम की अदायगी से इनकार किया तो फर्जी मैनेजर ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। मुतासिरा ने हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस से रुजू होते हुए इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई है। साइबर क्राइम पुलिस ने अवाम को फर्जी स्कैम से
चौकन्ना रहने और सरमायाकारी करने से पहले कंपनी की मुकम्मल तफसीलात हासिल करने का मशवरा दिया है। हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने सुन्नम चेरुवू झील के रकबे और इससे मुताल्लिक़ किए जा रहे दावों पर वजाहत पेश की है। हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने कहा कि सन 1970 में किए गए सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि सुन्नम चेरुवू झील 26 एकड़ पर मुश्तमिल है। साल 2016 में HMDA के सर्वे में झील के रकबे को 32 एकड़ बताया गया है, इसलिए ये दावा करना कि झील महज 15 एकड़ पर मुश्तमिल है दुरुस्त नहीं है। उनका कहना था कि ये बात भी काबिल गौर है कि उस इलाके के लिए हुदा लेआउट का मुसविदा बहुत पहले ही मंसूख कर दिया गया था। पिछले 10 सालों से प्लॉट मालिकान को तामीर की कोई इजाजत नहीं दी गई क्योंकि उनके प्लॉट झील के FTL के अंदर आते हैं। एवी रंगनाथ ने कहा कि अगर किसी प्लॉट के मालिक के पास कानूनी और दुरुस्त दस्तावेजात हैं तो वो काबिल इतलाक उसूलों के मुताबिक मुआवजे या काबिल मुंतकिली तरक्याती हुकूक के हुसूल के लिए हुकूमत से रुजू कर सकते हैं। उनका कहना था कि इनफरादी मफादात मुतासिर होने के नाम पर मुनासिब दावों की अदम मौजूदगी में चंद प्लॉट के मालिकान झील की बहाली के कामों में रुकावट नहीं डाल सकते। उनके पास हमेशा कानूनी जराए से सहारा लेने का इख्तियार होता है। आपको बता दें कि मकीनों की नाराजगी और एहतजाज के दरमियान हैदराबाद डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी के ओहदेदारों ने पीर को सुन्नम चेरुवू के इलाके में कई तजावुजात को मस्मार कर दिया है। दरियासना इमारत के मालिकान की जानिब से एहतजाज भी किया गया। साबिक वजीर व MLA हरीश राव ने संगारेड्डी जिले के पाशा मैलारम सनती इलाके में आतिशज़दगी के मुकाम का दौरा करते हुए इमदादी इक़दामात की तफसीलात हासिल की। संगारेड्डी जिले के पाशा मैलारम सनती इलाके में पीर को एक केमिकल फैक्ट्री में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में 8 मजदूर हलाक हो गए। साबिक वजीर हरीश राव ने मुकामी MLA चिंता प्रभाकर और दीगर रहनुमाओं के साथ पाशा मैलारम सनती इलाके में आतिशज़दगी के मुकाम का दौरा किया। जिला कलेक्टर SP और NDRF की टीमों से बातचीत करते हुए इमदादी इक़दामात से तफसीलात हासिल की। हरीश राव ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि हादसे के 5 घंटे बाद भी हुकूमत इमदादी इक़दामात करने और अहल खाना को मतला करने में नाकाम रही है। उनका कहना था कि धमाके में 8 मजदूरों की जानों का ज़िया बहुत अफसोसनाक है। वो मरने वालों के अहल खाना के साथ ताज़ियत का इजहार करते हैं। साबिक वजीर ने कहा कि हादसे के वक्त फार्मा कंपनी में कुल 140 अफराद काम कर रहे थे। 8 लोगों की मौत हो गई, दीगर कई जख्मी हो गए जिन्हें अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। उनका कहना था कि दूसरी रियासतों के लोग यहाँ काम कर रहे हैं, उनके अफराद खानदान परेशान हैं और हुकूमत लापरवाही का मुजाहरा कर रही है। हरीश राव ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो हादसे में हलाक होने वालों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दे और जो अफराद जख्मी हुए हैं उनको बेहतर इलाज के लिए 50 लाख रुपये फराहम करे। महकमे मौसमियात ने खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव की वजह से पूरे तेलंगाना में बारिश की पेश क़यासी की। वस्ती और मशरक़ी तेलंगाना के कुछ हिस्सों में शदीद बारिश का इम्कान जताया। मुल्क में जुनूब मगरबी मानसून मुकम्मल तौर पर फैल गया है। मुल्क के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिशें जारी है। महकमा मौसमियात ने खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव की वजह से पूरे तेलंगाना में बारिश की पेश क़यासी की है। वस्ती और मशरक़ी तेलंगाना के कुछ हिस्सों में शदीद बारिश का इम्कान जताया है। मेदक, संगारेड्डी, विकाराबाद, वरंगल, महबूबाबाद, खम्मम, भद्रादरी और मुलुगु में शदीद बारिश का इम्कान है। शहर हैदराबाद में भी दिन भर मतला अबर आलूद रहने, शाम के औकात में या फिर रात में हल्की बारिश का इम्कान जताया गया है। आपको बता दें कि ड्राइवरों और मुसाफिरों को मोहतात रहने का मशवरा दिया गया है क्योंकि बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा होने और हादसा पेश आने का इम्कान है। लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो बिजली गिरने के खतरे के पेश नज़र ज़रूरत पड़ने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें और बिजली के आलात को मोहतात तरीके से इस्तेमाल करें। शहर हैदराबाद में एक नौजवान के कत्ल की वारदात पेश आई। पुरानी दुश्मनी नौजवान के कत्ल का सबब बन गई।
ज़राए ने बताया कि पीर को कुकटपल्ली में देवास थाना होम्स के करीब एक सुनसान जगह पर एक नौजवान का बहिमाना कत्ल कर दिया गया। पुलिस को शुबा है कि कत्ल की वजह पुरानी दुश्मनी थी। मकतूल की शिनाख्त सैयद शाहिद के तौर पर हुई है, जो कि अल्लाहपुर पुलिस स्टेशन का रॉडी शीटर था और बोरा बंडे का रहने वाला था। पुलिस ने बताया कि सैयद शाहिद को नामालूम अफराद ने कत्ल किया और ऐसा समझा जाता है कि नामालूम अफराद और सैयद शाहिद के दरमियान कुछ बहस हुई और बहस के बाद उस पर चाकू से हमला किया गया, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गया। कत्ल की इतला मिलने पर कुकटपल्ली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल किया और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए कातिलों की शिनाख्त में मसरूफ हो गई है। पुलिस ने कातिलों की शिनाख्त और गिरफ्तारी के लिए जाए वारदात के आसपास के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच शुरू कर दी है। मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार ने कहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने किसका नाम तजवीज़ किया है, पार्टी अपनी हिकमत अमली के मुताबिक ही फैसला करेगी। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर की तकर्री को लेकर हो रही बहस और तनकीदों के दरमियान मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार ने वजाहत की है कि पार्टी हाईकमान के फैसले पर गैर जरूरी बहस और तनकीद बेमाने है। बीजेपी के दफ्तर में सहाफियों से बात करते हुए बंडी संजय कुमार ने कहा कि हाईकमान तमाम पहलुओं पर गौर करेगी और रियासती सदर के ओहदे को लेकर फैसला करेगी। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो इख्तिदार के लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए काम करती है। उन्होंने मजीद कहा कि हम पूछ सकते हैं कि सदर का ओहदा कौन संभालेगा, लेकिन फैसला हाई कमान ही करेगी। बंडी संजय कुमार ने मुतनब्बा किया है कि सोशल मीडिया पर पार्टी के खिलाफ पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पार्टी के फैसले का एहतराम किए बगैर सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा करना मुनासिब नहीं है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। बंडी संजय ने भारत राष्ट्रीय समिति के उन इल्जामात को भी मुस्तरद कर दिया है जिसमें ये कहा गया है कि बीजेपी बीसी को सदर का ओहदा नहीं देगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी वही पार्टी है जिसने उन्हें और लक्ष्मण को माजी में रियासती सदर का ओहदा सौंपा था। बंडी संजय कुमार ने कहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना बीजेपी के सदर के लिए किसका नाम तजवीज़ किया है, पार्टी अपनी हिकमत अमली के मुताबिक ही फैसला करेगी। मलकाजगिरी के बीजेपी एमपी इटेला राजेंद्र ने मकानात के इन्हदामी को लेकर रियासती हुकूमत पर तनकीद की है। हाइड्रा की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इन्हदामी कार्रवाइयाँ जारी हैं और रियासती हुकूमत पर इन्हदामी कार्रवाइयों को लेकर मुसलसल नुक्ताचीनी की जा रही है। मलकाजगिरी के बीजेपी एमपी इटेला राजेंद्र ने एक मरतबा फिर मकानात के इन्हदाम पर हुकूमत पर तनकीद की। जवाहर नगर में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए इटेला राजेंद्र ने पूछा है कि 30 या 60 गज पर घर बनाने वाले गरीबों के मकान क्यों तोड़े जा रहे हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस कायदीन ने बंजारा हिल्स में 50 करोड़ रुपए, 60 करोड़ रुपए और 100 करोड़ रुपए की अराजियात पर कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा कि गरीबों को परेशान किया जा रहा है। रेवंत रेड्डी की हुकूमत गरीबों की जिंदगियों से खेल रही है। इटेला राजेंद्र ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो इस तरह का पागलपन बंद करे और गरीबों के लिए मजीद मसाइल पैदा ना करें। बसूरत दीगर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। निजामाबाद के बीजेपी एमपी धर्मपुरी अरविंद ने तेलंगाना बीजेपी सदर की तकर्री पर अहम तबसरा किया। कहा, पार्टी का फैसला उनका फैसला है। तेलंगाना बीजेपी ने पार्टी के नए सदर के तौर पर साबिक एमएलसी रामचंद्र राव के नाम को हतमी शक्ल दी है और वो जल्द ही अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने वाले हैं। निजामाबाद के एमपी धर्मपुरी अरविंद ने तेलंगाना बीजेपी सदर की तकर्री पर अहम तबसरा करते हुए कहा कि वो पार्टी हाईकमान के फैसले पर पाबंद है। नामपल्ली में सहाफियों से बात करते हुए धर्मपुरी अरविंद का कहना था कि जो भी पार्टी की जानिब से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेगा उसे हमारी हिमायत हासिल होगी और पार्टी का फैसला हमारा फैसला है। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती सदर मुंतखब होने वालों के साथ ताउन किया जाएगा और आने वाले दिनों में पार्टी को मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी।
ہندوستانی کرکٹ ٹیم انگلینڈ کے خلاف 2 جولائی سے کھیلے جانے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کی تیاریوں کے لیے برمنگھم کے ایجبسٹن کرکٹ اسٹیڈیم پہنچ گئی ہے۔ ہیٹنگلے میں سیریز کے پہلے میچ میں 5 وکٹوں سے شکست کھانے والی ہندوستانی کرکٹ ٹیم کی توجہ اینڈرسن ٹنڈولکر ٹرافی سیریز برابر کرنے اور مضبوط واپسی پر مرکوز ہے۔ ہندوستانی کرکٹ ٹیم انگلینڈ کے خلاف 2 جولائی کو دوسرا ٹیسٹ میچ کھیلے گی۔ دوسرے ٹیسٹ میچ کی تیاریوں کے لیے اپنے ٹریننگ سیشن کا آغاز کرنے کے لیے ہندوستانی کرکٹ کھلاڑی برمنگھم کے ایجبسٹن کرکٹ اسٹیڈیم پہنچ گئے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ روہت شرما کی جگہ ہندوستانی ٹیم کی کپتان کی ذمہ داری شبھمن گل نے سنبھالی ہے۔ ٹی پی سی سی کے صدر مہیش کمار گوڑ نے ایل بی اسٹیڈیم کا دورہ کرتے ہوئے 4 جولائی کو منعقد کھرگے سبھا کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ جے باپو جے بھیم جے سمویدھان پروگرام کے ایک حصے کے طور پر شہر حیدرآباد کے ایل بی اسٹیڈیم میں 4 جولائی کو کھرگے سبھا منعقد ہو رہی ہے، جس میں دیہی سطح کے قائدین شرکت کریں گے۔ تقریباً 15,000 افراد کی شرکت متوقع ہے۔ اے آئی سی سی کے صدر ملک ارجن کھرگے ایل بی اسٹیڈیم میں دیہی سطح کے قائدین سے خطاب کریں گے۔ پیر کو ٹی پی سی سی کے صدر مہیش کمار گوڑ نے وزیر پونم پربھاکر و دیگر قائدین کے ہمراہ ایل بی اسٹیڈیم کا دورہ کرتے ہوئے کھرگے سبھا کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ تمام دیہی قائدین اس اجلاس میں شرکت کریں گے اور اس اجلاس کا مقصد کانگریس کی آواز کو دہلی سے لے کر دور دراز کے گاؤں تک پہنچانا ہے۔ انہوں نے پارٹی کے تمام قائدین پر زور دیا ہے کہ وہ ملک ارجن کھرگے کے دورہ حیدرآباد کو کامیاب بنانے کے اقدامات کریں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، ایم آر آئی، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔